One of the common application of biotech is genetically modified crops. What are these genetically modified crops and what are its different applications? इस मॉड्यूल में हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे. Genetically modified crops, they have either one added gene sequence or one deleted gene sequence. अब इस एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन सीक्वेंस की वजह से जो बिहेवियर है हमारी क्रॉप्स का वो चेंज होता है एंड दैट वुड बी यूजफुल और अनयूजफुल. Similarly, we can have some change in animal products. As we said that there is a change in plant products or from crops. Similarly, there can be change in animal products. And this change can be useful or unuseful. So what is the idea basically? There is a domain called genetic engineering which offers a rapid and precise methods of altering organisms as compared to traditional methods. This genetic engineering क्या है कि based on some change in genetic order we produce some new products in animals and in plants. इसकी need क्यों है? Why it is useful? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि what are the different problems related to hunger in current times. इसके लिए मैंने 2009 का एक हंगर मैप लिया है जिसके अंदर मैं ये शो कर रहा हूँ कि जो हमारे पास अंडर नोरिश्ड पीपल हैं या पर्सनस हैं थ्रू आउट द ग्लोब वो क्या है. इसके लिए हमारे पास जो कलर्स दिखाए गए हैं, ये जो मैरून कलर है हमारा, दिस वन, इट बेसिकली शोज अंडर नोरिश्ड पर्सनस एंड देयर परसेंटेज इज वेरी हाई. फॉर एग्जांपल हियर इट इज शोन बाय 35%. तो अगर मैं इस चीज़ पे फोकस करूं तो जो हमारा ये अफ्रीका का एरिया बनता है रफली ये वाला, इसमें हमारे पास अंडर नोरिश पर्सन बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर वर्ड. सिमिलरली दिस ऑरेंज कलर, दिस वन, इट शोज एरियाज विच आर मॉडरेटली हाई, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इन अंडर नोरिश पर्सन. अंडर नोरिश पर्सन से मुराद ये है कि जिनकी नोरिशिंग कंप्लीट नहीं होती, जिनकी कंप्लीट इन्फॉर्म यानी कि जो कंप्लीटली अपने आप को नोरिश नहीं कर सकते या अपनी इंफॉर्मेशन अटेन नहीं कर सकते. दैट इज फॉर मॉडरेटली हाई पीपल. देयर आर अगेन सेवरल एरियाज such as our Pakistan and India and different other countries, they come under this heading. So as a whole we can say that across the globe there are very good number of areas which are either unnourished or very high tendency of unnourished information. अब इस चीज़ को जब हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जो न्यूट्रिशन वाइज काफ़ी ज़्यादा एनरिच हों, जो फूड वाइज बेहतर हों और उस बेहतर फूड को खाने की वजह से नोरिशमेंट हाई की तरफ मूव करें. What are genetically modified crops? There are a variety of different crops available. For example, first modified crop was tomato. Then we have vegetables, rice, cheese, meat, and so on. At the moment, this genetically modification is being performed at every level in vegetables and in animals. So what are different advantages of these genetically modified crops? So number one, as I have said earlier, it would help us in erasing the hunger which is being present in the world at the moment. Then development of drought resistance across different areas in the world. ड्रॉट से मुराद क्या है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे हमारे पास पानी की या न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो हम ऐसे जीन्स बनाएं या ऐसे सीड्स बनाएं जो पानी की कमी में भी अपने आप को सस्टेन कर सकें. Then we have development of crops which have more nitrogen components, which is a basic nutrition component. Then we have foods and different items which are nutritionally good. And then we have crops which are also flood resistance, because as drought is a problem in the world, similarly floods are also another problem, because दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं जिसकी वजह से काफ़ी वेस्टेज होता है. तो हम ऐसे सीड्स बनाएं जो फ्लड की वजह से असर ना हो जिन पे, कि after flood they attain or they sustain themselves. So here I have given some examples which are in animation. So first example is development of disease or frost resistance crops. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है जो बेसिकली एक यूरोपियन कॉर्न बोरर है विच इज़ एन इंसेक्ट. और वो करता क्या है कि एक प्लांट के ऊपर अटैक करता है और प्लांट की तबाही का बाइस होता है. उस तबाही से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक टॉक्सिन करते हैं. टॉक्सिन जो बेसिकली एक जहर होता है, and that toxin is injected in this genetically modified plant which is shown here. So this is our genetically modified plant and there is a toxin present. जो ये जहर है ये क्या करेगा कि जो हमारे पास यूरोपियन कॉर्न बोरर है, इंसेक्ट है, इसको किल कर देगा. अब क्या है कि जब भी ये इंसेक्ट इस पे अटैक करेगा, बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिन इट विल डाई और हमारा जो प्लांट है दैट विल बी इन सेफर प्लेस. सिमिलरली वी हैव हर्बिसाइड टॉलरेंस. हर्बिसाइड्स हमारे पास क्या होते हैं
हर्बिसाइड्स हमारे पास डिफरेंट स्प्रेज हैं जो हम स्प्रे करते हैं अपनी प्लांट्स को बचाने के लिए। अब कॉमनली ये होता है कि हमारे पास जो क्रॉप्स होती हैं उनके साथ वीड्स अवेलेबल होती हैं। वीड्स से मुराद झाड़ियाँ वगैरह जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जिनकी एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखाई है। ये हमारे पास डिफरेंट वीड्स हैं जो हमारी झाड़ियाँ हैं। ये क्या करती हैं कि अगर इनको हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये हमारे प्लांट्स को ख़राब करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं विच इज़ यूज़फुल। अब वो कैसे यूज़फुल है कि जब भी हर्बिसाइड का स्प्रे होगा तो ये हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को, इसको बिल्कुल भी हर्ज कोई नहीं करेगा, यानी कि ये एज इट इज़ ही ग्रो करेगी। ऑन द अदर एंड इट विल ओनली किल दीज वीड्स। जो हमारे प्लांट्स के साथ वीड्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं या झाड़ियाँ वगैरह हैं, उनको ख़त्म कर देगा, लेकिन जो हमारा क्रॉप है वो एज इट इज़ रहेगी। तो ये एक और हमारी एप्लीकेशन है फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सिमिलरली दिस फिगर शोज अबाउट ड्राफ्ट रेजिस्टेंस, कि हमारे पास जो ड्राफ्ट के एरियाज हैं वहाँ पे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो यूज़फुल हैं। सिमिलरली एक और चीज़ ये है कि जो हमारी कन्वेंशनल सीड्स हैं, जो कॉमन बीज हैं हमारे, उनकी जो यील्ड है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लेंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, विच इज़ शोन बाय हाई यील्ड। एंड फाइनली हमने एक यहाँ पे वायरस दिखाया है बेसिकली, कि हमारे पास एक अमरूद है हवाइन पपाया जो है, उसका एक वायरस होता है जो पपाया रिंग स्पॉट वायरस कहलाता है। अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड पपाया यूज़ करेंगे तो इट विल हैंडल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वायरस, और इस वायरस को वो ईजिली किल कर देगा और हमें एक्स्ट्रा हर्बिसाइड्स या स्प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनदर एनिमेशन इज़ अबाउट एडिंग न्यूट्रिशन वैल्यू। हमारे पास वाइट राइस है जिसके अंदर हम अपनी जीन ऐड करते हैं, जैसे डेफोडिल प्लांट की या मेज़ की, और इसी तरह एक बैक्टीरिया ऐड करते हैं जो एरविना है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि गोल्डन राइस प्रोड्यूस होता है, और गोल्डन राइस इज़ फेमस फॉर इस न्यूट्रिशन, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है बिकॉज ऑफ एनरिचमेंट ऑफ विटामिन ए कंपोनेंट इन दिस प्लांट। एक और बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन बायोटेक की है स्टोरेज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। स्टोरेज से मुराद क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक टोमेटो दिखाया है जिसके अंदर हम थ्रू सम इंजेक्शन कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। अब होता क्या है, इसकी वजह से इसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल कॉमनली ये देखा जाता है कि अगर कोई हमारे पास फल या सब्जी है तो वो आफ्टर सम टाइम डिके कर जाती है। उसको स्टोरेज करने के लिए हम डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, एंड देन इट विल हैव सम स्टोरेज स्पेस ऑल्सो। अब क्या है कि ये वेयर हाउसेज में हमारे पास रहेगा और इसकी लाइफ ख़राब नहीं होगी। सो वट विल हैपन, इट विल हेल्प टू डिक्रीज द स्पॉइलिंग रेट ऑफ वेजिटेबल्स। और यहाँ पर हमने दोबारा एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाज फ्लेवर 7 which was a basically tomato which was in the United States. Although there are several advantages of genetically modified crops, there are some disadvantages also, such as they can be allergic to human beings or animals. The other thing is they can reduce some useful animals or some useful plants or some useful weeds also. So we have to make some boundary or draw some boundary where this genetically modified crops have advantage and where they have some disadvantages.